Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about work done. The formula for the work done is Jiyan. What is the formula for the work done? Force into distance. Yes, force into distance moved, and its unit is joules. Yes. Now, what is kinetic energy? 1/2 mv square. What is the definition of kinetic energy? Uh, uh, an object's mass moving at a certain speed. Yes, energy due to motion is known as the kinetic energy. Energy due to motion is known as kinetic energy. And the formula for the kinetic energy is half mv square. Now, change in kinetic energy. How can we measure the change in kinetic energy? The final speed or initial speed दोनों formula में डाल के minus कर दें. Yes, change in kinetic energy is equal to final kinetic energy u square. If we will take common half m, then we will get v square minus u square. And according to the third law of motion, for constant acceleration, v square minus u square is equal to 2as. We will cancel out 2 with 2, mas. Now what is ma? Force. Yes, force. Now change in kinetic energy is also again force into distance moved. Change in kinetic energy is also work done. So we can measure the work done with the help of force into distance moved, and we can also measure the work done with the help of change in kinetic energy. So change in kinetic energy is also work done. Oh. And the kinetic energy has the unit joules. Now what is potential energy? Jiyan. Say gravitational potential energy. Yes. Energy due to position is known as the potential energy. Is known as potential energy. Now, for the formula for the
Potential energy is mg into h. Now what is mg? W. W. Wait. And we consider w as a force, and we consider weight as a force. Yes. While solving the questions in the inclined plane or on the plane surface, the force downwards is always its weight. Ayan, can we Yes, sir. consider weight as a force? Yes, क्योंकि direction है उसमें. Yes. This one is again force into distance moved. It means that force is gravity, force is weight, into distance moved is the potential energy. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने 10 फीट अबव प्लेस कर दिया है, तो हमने क्या किया है, द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, वेट था. तो हमने अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हुए पार्टिकल को 10 फीट 10 मीटर कह लें, हमने उसको प्लेस कर दिया हायर, जिसे कहते हैं पोजीशन पे प्लेस कर दिया. तो जब हम उस पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली द पार्टिकल विल डू सम डैमेज ऑन द अर्थ, और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई होती है जिसकी वजह से वो डैमेज करता है जमीन पे आके. अपनी एनर्जी की वजह से. वो एनर्जी क्यों स्टोर हुई है? जी यार. um, समझ नहीं आया एनर्जी. बेटा ये देखें कि एक पार्टिकल है, जमीन पे पड़ा हुआ है, उसको हमने रूफ टॉप पे रख दिया है. अब वहां से जब हम पार्टिकल को जमीन के ऊपर ड्रॉप करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है जमीन के ऊपर आके कुछ ना कुछ डैमेज करेगा. ठीक है. जी, एनर्जी उसके रिलीज अंदर होगी. एनर्जी एनर्जी स्टोर हो गई थी. हमने क्या किया था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हुए हमने उसको पार्टिकल को रूफ टॉप पे प्लेस कर दिया था. और जी. जब हमने उस पार्टिकल को रिलीज किया तो उस एनर्जी ने क्या किया, उस एनर्जी को यूज करते हुए पार्टिकल ने नीचे आना शुरू कर दिया. जी. और वो किसी चीज के साथ अगर टकराएगा तो जाहिर सी बात है कुलिजन होगा, वहां पर डैमेज होगा, या उससे हम कोई काम भी ले सकते हैं. जी. ठीक है. तो जब हम किसी पार्टिकल को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है अपनी हाइट की वजह से. और जो वो हाइट गेन करता है, वो डिस्टेंस मूव्ड है. और उस केस में फोर्स क्या है, वेट है. फिर बताऊं बेटा? मैं समझ गया सर. ठीक है. तो एज की जगह आपने एस लिखा हुआ है. जी बेटा, जितना डिस्टेंस हमने उसको अपवर्ड मूव किया है, वो जो है वो हाइट है. और जो फोर्स क्या थी वहां पर, अगेंस्ट वेट हमने ये काम किया है, तो फोर्स वहां पर एफ थी. एफ क्या है, वेट है यहां पर. अब जब हम पार्टिकल को ऊपर से रिलीज करेंगे तो उसके अंदर फोर्स क्या होगी, किस फोर्स से वो नीचे की तरफ आएगा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी उस वक्त बेटा, जब पार्टिकल सर, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या नीचे है? की तरफ. नीचे की तरफ. फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, कौन सी फोर्स होगी जिसकी वजह से वो नीचे आएगा? ग्रेविटी. तो वेट हम की वजह लिखेंगे से, 10. वेट की वजह से नीचे आएगा. तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, वेट होगी. जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, हम वेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. जी. फिर बताऊं बेटा? समझ गया सर. अब ये देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो वर्क डन, क्योंकि वो भी एफ इंटू एस बनता है. अब ये देखें कि चेंज, जो वर्क डन है वो हम फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी फाइंड आउट हो सकता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी फाइंड आउट हो सकता है. अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, then this type of work done is known as work done by weight.
अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स कौन सी उसको नीचे की तरफ ला रही है? वेट। जी। देन this type of work done is work done by weight. If the object is moving upwards, then this type of work done is work done against weight. ठीक है बेटा? जी सर। अब जी, now we will discuss the potential energy on an inclined plane. How to calculate the potential energy when the object is moving on an inclined plane? This one is the horizontal, this one is the inclined plane, this one is the object, this one is the weight. These are the components of weight: mg. mg sin theta और mg cos theta। Yes. And this one is mg cos theta. reaction force। Yes, very good. This one is normal reaction. Now the particle has traveled a distance of x meter along the inclined plane. Now the height gained by the particle is this h. Now x is the distance covered along the plane. Along the plane, h is the vertical height. अब पोटेंशियल एनर्जी का बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी, फिर mgh। यस, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। हाइट क्या होगी बेटा इस केस में? h। If the distance moved along the plane is x and angle of the inclined plane is theta,
then what is the value of H in terms of X? Components, vertical component क्या होगा? Value of H in terms of X. X का vertical component निकाल लें बेटा. Find out the vertical component of X when the angle is theta. X sin theta or X X is cos equal to theta? mg sin theta. No, mg no, sin theta. no, 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 no. ये बेटा डिस्टेंस की बात हो रही है. H is the vertical Okay. distance. X is the distance along the plane. Horizontal. Now, if we will find out the components of X, then H is equal to X sin theta. बेटा हम कंपोनेंट्स नहीं बनाते. ये देखें. The distance covered along the plane is X. This angle is theta. We want to find out the vertical component. These are the two components. This component is X sin theta and this component is X cos theta. Oh, Recall the components. So what is the समझ आ value गया. of H in terms of X? Value of H, X sin theta. Yes, X sin theta. This one is the potential energy gained by the particle. Okay. Now there is an easy method to find out the potential energy, or what is the component of weight along the plane? mg cos नहीं mg Component of weight along the plane. along the plane mg sin theta. This one is the plane. Can you see the cursor? Yes, sir. So mg This sin one is the theta plane. Mg sin theta. Yes. And what is the distance covered along the plane? x. Yes. Force into distance moved is the definition of the work done, and potential energy is also work done. So the force is mg sin theta and the distance moved is x. Now again you have the same answer, mg sin theta into x and mg sin theta into x in both the cases. Sure. So there is no need to calculate, just like in the first method I have calculated height, then mg into height मैंने की है. हम सीधा सीधा कर देंगे mg sin theta into x is the potential energy. लेकिन से मुझे समझ नहीं आई, फोर्स इनटू डिस्टेंस किया आपने हाँ जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन. अच्छा ठीक है, समझ गया. डिस्टेंस हमारा x है और जो फोर्स यानी कि है वो जिस हम. डायरेक्शन का डिस्टेंस हो ना, उसी डायरेक्शन की फोर्स होनी चाहिए. जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस हो बेटा, उसी डायरेक्शन की फोर्स होनी चाहिए. जैसे वेट की डायरेक्शन वर्टिकल थी, तो हमने उसको वर्टिकल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया. जो एक्स की डायरेक्शन क्या थी? लॉन्ग द प्लेन थी. तो वेट का जो अलॉन्ग द प्लेन कंपोनेंट था, उसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया. फोर्स इंटू डिस्टेंस मैं मूव, समझ दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. मैं समझ ठीक है बेटा. तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वो ये वाला करेंगे. तो सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो हम वी विल यूज दिस फॉर्मूला. Potential energy is equal to mg sin theta into x. We will not calculate the height separately. We will just use mg sin theta into x. ठीक है बेटा, समझ आ गई? जी सर. फिर बताऊं? नहीं नहीं सर, मैं समझ गया. अच्छा जी. अब आपको मैं एक एनर्जी इक्वेशन बताने लगा हूं. आपने उसको याद रखना है, एंड यू विल ट्राई टू use that energy equation in all the questions of the potential energy and kinetic energy questions.
Okay. The equation is work done by the driving force. ये एनर्जी की इक्वेशन है. Yes, work done by the force plus loss in energy is equal to gain in energy plus work done against resistance. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. अब ये देखें बेटा, एक प्लेन इंक्लाइंड प्लेन है. आप साइकिल के ऊपर उस पे जा रहे हैं. जब आपकी यू वांट टू क्रॉस दैट इंक्लाइंड प्लेन, एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन योर स्पीड इज 5 मीटर्स पर सेकेंड. आप अपनी पूरी ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं. यू विल यूज योर फुल ड्राइविंग फोर्स, पेडलिंग करेंगे आप. बट when you are 1 meter from the top of the inclined plane, आप जो है रेस्ट पे आ जाते हैं. आपकी स्पीड 0 हो जाती है. हाउ कैन यू क्रॉस दैट inclined plane? फिर से एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए. जी बेटा, there is an inclined plane on the bicycle. I want to cross that inclined plane. At the bottom of the inclined plane is uh, my speed is 5. But when I am 1 meter from the top of the inclined plane, मेरी जिसे कहते हैं कि डिस्पाइट अप्लाइंग फुल ड्राइविंग फोर्स, मैं रेस्ट पे आ जाता हूँ. मैं आई कैन नॉट क्रॉस दैट इंक्लाइंड प्लेन. तो मैं किस तरह, हाउ कैन आई क्रॉस दैट इंक्लाइंड प्लेन, उसको मैं किस तरह डिजाइन करूंगा अपने इस एक्सपेरिमेंट को कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊं. फिर एंगल कम कर दें. नहीं, एंगल उतना ही रहना है. आई कैन नॉट चेंज द एंगल. यू फिर कैन चेंज फोर्स एनी अदर वैल्यू. सिर्फ फोर्स इंक्रीज करें, जो वर्क डन नो, आप कर रहे हैं आई वो एम इंक्रीज. आई एम अप्लाइंग माई फुल ड्राइविंग फोर्स. ओके. तो फिर फ्रिक्शन इंक्रीज करनी. तो फिर मैं ज्यादा जल्दी स्टॉप कर जाऊंगा. पहले 1 मीटर पे स्टॉप किया हूँ, फिर 2 मीटर पे कर जाऊंगा. फ्रिक्शन विल डेफिनेटली कंज्यूम माय ड्राइविंग फोर्स. तो मैं तो जल्दी रुक जाऊंगा फिर. लेकिन अगर फ्रिक्शन कम भी होगा तो फिर नीचे चले जाएंगे. नहीं नहीं, फ्रिक्शन अगर कम कर देंगे, फ्रिक्शन की बात नहीं, अभी हम फ्रिक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे. अगर मैं बॉटम ऑफ द जो इंक्लाइंड प्लेन स्पीड है बढ़ा दें. उस पर अपनी, जी 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 बोले. फिर स्पीड बढ़ा दें. यस, if I will एक्सेलरेशन. increase the if I will increase the speed at the bottom, तो क्या होगा कि तो फिर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उसको क्रॉस कर जाऊंगा. ऐसे ही है. ठीक है. अब ये देखें कि इज दिस पॉसिबल कि बॉटम ऑफ द स्लोप के ऊपर मैं अपनी स्पीड जो है वो कर लेता हूँ 30 मीटर्स पर सेकंड कर देता हूँ. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं पेडलिंग भी नहीं करता, फिर भी मैं उस स्लोप को क्रॉस कर जाऊं. हो सकता है अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो. यस. इसका मतलब ये है कि जब बॉटम टू टॉप जाते हुए कौन सी एनर्जी कम हुई?
काइनेटिक और पोटेंशियल, जी सर। कौन सी एनर्जी कम हुई, काइनेटिक कम हुई या पोटेंशियल कम हुई? सिर्फ दोनों कम नहीं, काइनेटिक तो कम हो ही गई। हाँ जी, नहीं, एमजीएच तो बढ़ जाएगा क्योंकि और बिल्कुल ऊंचा सही, जा रहा है। बिल्कुल सही। तो सिर्फ काइनेटिक। जो देखें, जो अगर मैंने पैडलिंग नहीं भी कर रहा, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी बॉटम पे, मैं फिर भी उसको विदाउट पैडलिंग भी उसको क्रॉस कर जाऊंगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अगर बॉटम, सर यस, यस जी, होगा। अगर बॉटम के ऊपर मैं अपनी स्पीड को 30 मीटर पर सेकंड कर लेता हूं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी मैं पेडलिंग नहीं भी करता फिर भी मैं स्लोप को क्रॉस कर जाता हूं। इसका मतलब ये उस वक्त कौन सी फोर्स एज अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही थी, कौन सी एनर्जी एज अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही थी? काइनेटिक एनर्जी। यस। तो एक बात याद रखें, जो भी एनर्जी लॉस होता है ना, वो एज अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। समझ गया सर। जिस तरह गाड़ी का एक्सेलरेटर भी है, दबाएंगे और बेशक छोड़ दें, गाड़ी तो चलती रहेगी और इवेंचुअली लूज हो जाएगी वो एनर्जी। यस, लेकिन उस वक्त गाड़ी किस वजह से चल रही होती है? अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से चल रही होती जी, है उस जो वक्त। पहले से उस एक्सेलरेट करने वक्त की जो वजह जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इज एक्टिंग लाइक अ ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स की जगह पर दो चीजें काम कर रही होती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स काम कर रही होती है, एक लॉस इन एनर्जी काम कर रही होती है। और उन दोनों चीजों को कंज्यूम कौन कर रहा होता है? गेन इन एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। से वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हाँ पे जी, कम कर रहे हैं। वो भी कंज्यूम कर रहे हैं ना। देखिए, रोड फ्रिक्शन जो है वो भी उसको आपकी काइनेटिक एनर्जी या और ड्राइविंग फोर्स को कंज्यूम कर रही है, और गेन इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कंज्यूम कर रही है। यानी कि आपकी जो जो दो एनर्जीज जो जनरेट हो रही हैं, जो काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है, जो ड्राइविंग फोर्स यूज हुई है, वो किस किस में कन्वर्ट हुई है? पोटेंशियल एनर्जी में। और उसने रेजिस्टेंस के खिलाफ काम किया। जी सर, समझ आ गई? समझ गया सर। जब भी कोई फिनोमिना होता है ना, आपने ये इक्वेशन लिख लेनी है, और इसके अंदर आपने चार चीजें पुट करनी है, आपका फौरन क्वेश्चन हो जाएगा। और लॉस इन एनर्जी के ऊपर आपने मॉडुलस लगाना है, ठीक है? उस एनर्जी को आपने, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव कर लेना। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई? अब ये देखें, आप जो टॉप ऑफ द स्लोप पे खड़े हैं, आप पेडलिंग नहीं करते, और साइकिल को फ्री व्हील्स डाउन नीचे मूव करवाते हैं, तो साइकिल नीचे आ जाएगी ना बॉटम ऑफ द स्लोप पे। जी सर। ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं आपने लगाई, पेडलिंग नहीं किया अ, आपने। नहीं, नहीं, हाँ, वो स्लोप की वजह से नीचे आ रहे हैं। हाँ, उस केस में क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स की जगह पर हम जीरो लिखेंगे, लॉस इन एनर्जी की जगह पर कौन सी फोर्स आएगी? लॉस एनर्जी सर, एमजीएच लूज हो रहा है मेरे बिल्कुल ख्याल से। सही है। इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी की जगह पर कौन सी एनर्जी आएगी, वन सॉरी वन एनर्जी? बाई टू एम वी स्क्वायर। वन बाई टू एम वी। शाबाश। गेन इन एनर्जी काइनेटिक होगी, प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस बता दें, जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको डिस्टेंस मूव से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास जो भी इन चारों चीजों में से जो भी अननोन होगा वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि सर ब्रेकडाउन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो वो फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये जो जी अब सर। मैंने यहाँ पर ये जो चीज लिखी है ना, आपने इसको याद रखना है, एंड ट्राई टू यूज दिस वन इन ईच क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है जी। नाउ वी विल अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस अबाउट द, now we will attempt some questions from exercise 8A. Can you see the exercise 8A on the screen? यस। Okay. The question number 1, find the kinetic energy of a football player of mass 90 kg running at 6 meters per second. Now, जी सर, इसमें what is the kinetic energy? बस ये वन और टू एम वी स्क्वायर करना है। Yes, question number 1, A तो part, kinetic ये हो energy. गया 1620।
Yes, half m v square is equal to half m is 90 into 6 square. What's the final answer? 1620 joules. 1620. 20 What is the unit? joules. Joules. Now, these are very easy questions. Now, I will attempt question number 3. Question number 3. A gardener moves a wheelbarrow 30-meter along a level straight path. Level straight path, there is no change in which energy? No change in mgh. Yes. The work done by the gardener is 120 joules. And the barrow is initially and finally at rest. यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने प्रोड्यूस की थी उतनी ही यूज कर ली. बात समझ आई मेरी? जी सर. There is no change in the kinetic energy also. Calculate the average resistance, average force resisting the motion. अब हम 120 वो हो गए वाला तो. अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वो जो अच्छा सर जी जी तो ऐसे नहीं होता वेग डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस तो 120 इज इक्वल टू एफ इनटू 30 तो बिल्कुल 120 सही है. ओवर 30. बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रहे हैं. लेकिन हमने वो जो फॉर्मूला है ना एनर्जी चेंज वाला वो यूज करना है. पहले है जी वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स. वो कितनी है जी? 120. ओके. लॉस प्लस लॉस इन एनर्जी 0 is equal to gain in energy 0 plus work done against resistance. Work done against resistance is resistance into distance moved, which is 30. So R is equal to 40. समझ आ गई? यस. तो वेग वेग डन By the टू इज driving force, बाय द ड्राइविंग फोर्स तो वो 120 है. फिर उसके बाद loss लॉस इन in एनर्जी और 0 है. क्योंकि कुछ और है ही नहीं हाँ जी और गेन एनर्जी भी नहीं है और जी फिर एंड में है वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो वो होगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस तो रेजिस्टेंस आर और डिस्टेंस 30 और आर 40 न्यूटन. बिल्कुल सही. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4. A crate is moved at a steady speed. Steady speed से हमें क्या पता चला? स्पीड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कौन सी एनर्जी में चेंज नहीं हो रही? 1/2 mv स्क्वायर सेम है. यस, वो उसमें चेंज नहीं हो रही. Is moved at a steady speed in a straight line by means of a tow rope. The work done in moving the crate 16 meter is 800 joules. Calculate the resolved part of the tension in the direction of motion. अब इस ऑब्जेक्ट को कौन मूव कर रहा है? ये हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कौन कर रहा है? वर्क डन. इस ऑब्जेक्ट को रोप मूव कर रही है और उसके अंदर जो टेंशन है वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है. ओके. ठीक है, तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस. टेंशन, द component of tension into 16 is the driving force. अच्छा यही होगा ना बेटा?
टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इस ऑब्जेक्ट को वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, एक फोर्स टी न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, दीज टू आर द कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब वो कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो कंपोनेंट है वो निकालें, ये चीज हमने निकालनी है, ये टी सी, ये वाला कंपोनेंट हमने निकालना है। जी सर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना मूव हुआ है, 16, यानी कि दिस फोर्स इनटू 16 इज इक्वल टू 800। फोर्स इनटू डिस्टेंस जी मूव्ड उसने बता दिए 800 है। यहां से हमारे पास कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 50 आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? तो सर मुझे तो इसी तरह से समझ आई है कि वेट डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो जो फोर्स है वो टेंशन है आप कह रहे हैं। हाँ जी, टेंशन का कंपोनेंट है यहाँ पर, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है बेटा, ये वाला फोर्स टेन, ये वाला कंपोनेंट है टेंशन का, ये जो मोशन कॉज कर रहा है, ये कंपोनेंट है, ग्रीन कलर से मैंने शो किया, ये कंपोनेंट मोशन कॉज कर रहा है। फिर ठीक है बताऊं सर, बेटा? समझ गए सर। तो 800 इज इक्वल टू टेंशन इनटू कंपोनेंट ऑफ टेंशन, कंपोनेंट ऑफ टेंशन। ऐसे, तो द कंपोनेंट ऑफ टेंशन इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है सर। ठीक है, अब हम जो है वो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर। जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है, a cyclist free wheels down a slope inclined at 15 degree to the horizontal, increasing his speed from 4 to 10 over a distance of 50 meters. Calculate the mean resistance on the cyclist. Given that the mass of the cyclist is 60. सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। मैंने बना दिया, आपको सेंड करूं? कर दें, मैं भी बना लेता हूं, आप उसको उसके साथ ना कंपैरिजन कर लें। ठीक है। 600, 600 cos 15, 600 sin 15, this one is normal action. Mean, we want to find out the mean resistance force. यहां पर कोई वर्क डन बाय द इंजन हो रहा है? नहीं सर, ये बस नीचे जा रहे हैं, फ्री व्हील। ठीक है, हम लिखेंगे 0 प्लस कोई एनर्जी लॉस हो रहा है? नहीं सर, ना देखें, गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। लॉस, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, कोई एनर्जी लॉस हो रहा यस सॉरी, mgh लूज हो रहा है और 1/2 mv² गेन हो रहा है। है? बिल्कुल सही है, यहां पर हम mgh मॉडुलस लिख देंगे। सर एक क्वेश्चन, ये जो जीरो है ये वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं है तो इसलिए जीरो है। जी बेटा। फिर उसके बाद लॉस पूछा हुआ है, तो लॉस जो लॉस है इन एनर्जी क्या हमारे होगा, पास mgh, m कितना है 60, g कितना है 10, और हाइट के एंड क्या है? हाइट नहीं पता, लिखा है कि
ओवर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, ये तो स्लोप का डिस्टेंस है, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है। एक्स मैंने साइन आपको बताया था थीटा। ना कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकालेंगे, एम जी साइन थीटा इंटू एक्स। यस यस। तो हम वो यूज कर लेंगे, या हम हाइट नहीं इसकी निकालेंगे, हम एम जी साइन थीटा इंटू एक्स यूज कर लेंगे। एम जी साइन 15 इंटू डिस्टेंस कवर्ड कितना है इंक्लाइन प्लेन पर, 50। ठीक है, यस। इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी हो रहा है कोई, 15 गेन हो रहा है 1/2 mv² का इज इक्वल। जी। आप देखेंगे इनिशियल स्पीड इज 4, फाइनल स्पीड इज 10, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। जी जी, गेन लॉस, यहाँ पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ना, क्योंकि स्पीड जो है 4 से 10 हो गई है। अच्छा, तो हमेशा डिफरेंस निकालना होता है। हाँ जी, इसी तरह ही चेंज आएगी ना। प्लस ये देखें, पहले मैंने लिखा, ये जीरो लिखा वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, प्लस लॉस इन एनर्जी लिखा, इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी लिखा, प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, आर, और डिस्टेंस मूव्ड कितना है, 50। यहां से आर की वैल्यू निकल आएगी। सिर्फ एक सेकंड, सॉरी। ये जो है गेन इन एनर्जी जो है वो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी है। जी फिर बेटा, वर्क डन अगेंस्ट डिस्टेंस के अंदर हमारे पास आता है एफ इंटू डी। एफ हमारा वो है फ्रिक्शन। ये पहली जो चीज है, एफ ये फ्रिक्शन। ये वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स है। ये इससे फिर दूसरी जो लॉस इन चीज एनर्जी, है, फिर गेन इन एनर्जी। ये लॉस इन एनर्जी है। ये जो तीस, ये जो थर्ड है, दिस वन इज गेन इन एनर्जी है। और जो फोर्थ है वो क्या है जी? वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। यस। तो रेजिस्टेंस जो है सिर्फ वो रिएक्शन फोर्स से नहीं है ना, वो आर तो नहीं कुछ नहीं नहीं और है। नहीं नहीं, वो आर कुछ और है, हम उसको एन से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें गलती ना हो। मैं इसे मैं एफ लिख ये दूं फ्रिक्शन के एफ लिए। लिख दें, एफ लिख एफ दें। आर यस, एफ आर लिख दें। इंटू 50। ठीक है, तो अब इसके अंदर फ्रिक्शन फाइंड होगा ना। रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही कह रहा है यहाँ पर। ये देखें कि वो कहते हैं कैलकुलेट द मीन रेजिस्टेंस ऑन द साइक्लिस्ट, कैलकुलेट द मीन रेजिस्टेंस ऑन द साइक्लिस्ट। ठीक है, तो इस सबको सॉल्व करेंगे और बस फिर वो आर रेजिस्टेंस हमारे आ पास आ जाएगी। जाए। जी जी, क्या आ रहा है आर? और उसे मैं कैलकुलेट जी, फाइनल आंसर इज 1 जी 104.8914। वो 4 डेसिमल तक ही है। 89। दिस वन इज द फाइनल आंसर न्यूटन्स। इससे ओके, ज्यादा नहीं है, ये सही है। इट्स ओके। ओके। अब ये देखें कि नाउ वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 12। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, सी पार्ट। बी पार्ट कर लेते हैं, बी सी दोनों करते हैं, ए बी सी दोनों करते हैं। कार ऑफ mass 700 accelerates from 10 to 30, there is an increase in the kinetic energy over a distance of 120 meters.
neglecting resistances, calculate the work done by the car engine if the road is horizontal. A part, road is horizontal. Okay. Work done by the driving force, calculate the work done by the car engine. This is the requirement. Work done by the driving force is x plus loss in energy. यहां पर कोई एनर्जी लॉस हो रहा है? एक मिनट, ये है, फिर इसका डायग्राम बना लूं मैं? जी बना ले, ये मैंने बना दिया। वैसे इसमें डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं है, ओके। हॉरिजॉन्टल तो फोर पर है। अच्छा, तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, एक्स मैंने कर लिया, वो हमने रिक्वायरमेंट है वो हम निकालना चाहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, एक्स प्लस लॉस इन एनर्जी। तो लॉस हमारे पास mgh का तो कोई लॉस नहीं है, हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर, कोई जीरो लॉस है। गेन इन एनर्जी है, एक्सेलरेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ ही रही होगी, तो डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे बढ़ एक नहीं बार रही 30। होगी, इसमें तो शक वाली, देयर इज नो डाउट। द इनिशियल स्पीड इज 10, द फाइनल इज 30, जी डेफिनेटली जी बढ़, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। यस, तो 30 हाफ माइनस 10, पहले 30 इंटू डालेंगे फिर 10 डालेंगे। 700 इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 700 इंटू 30 स्क्वायर, देयर इज नो रेजिस्टेंस टू द मोशन। अच्छा, सिर्फ पहले 30 नहीं डालेंगे हम? जी पहले 30 डालेंगे, ठीक कह रहे हैं आप। 10 30 एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर ये जो एंड में है, वेल डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जीरो। जी ये आपके पास आ गया, फाइनल आंसर मुझे बता दें। बस x है 1/2 700 मल्टीप्लाइड बाय 30 स्क्वायर माइनस 1/2। चलिए एक ही बात ऐसे जगह डालना चाहिए या अलग अलग करना एक ही दफा डालें। चाहिए? यस, तो ये हो गया 280,000 जूल्स। 280 जूल्स, इससे 280,000 आ रहा है। 280,000 ओके। ये ले जी। अब है जी कि नेक्स्ट है जी, देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, 10 इज द एंगल। अब ये देखें कि कौन सी इंक्रीज कर रही है। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स हमने निकालना है, एक्स। कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर रही है बताएं। अब mgh इंक्रीज कर, और और फिर यही इंक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं हो रहा। सोच लें, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो हो ही रही है increase, तो वो भी करने तो इंक्रीज हो रही है। yes। दो एनर्जीज जो है वो इंक्रीज हो रही है और लॉस इन एनर्जी कोई नहीं है, ऐसे ही है। यस सर। तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स प्लस जीरो इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी। दो एनर्जीज गेन हो रही हैं, हाफ इंटू 700 इंटू 30 स्क्वायर माइनस हाफ। तो इसे हम 280,000 लिख लें? लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना कि यस। ये सारा प्रोसीजर चलना है। प्लस एम जी एच लिखें या एम जी साइन थीटा इंटू एक्स लिख लें? सिर्फ एक सेकंड में बताता हूँ। कौन सा आसान है? ये आखिरी वाला क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जी तो पहले अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का लिखना है बेटा, उसका बताएं कि उसमें मैं एम जी एच यूज करूं या एम जी साइन थीटा इंटू एक्स यूज करूं।
फिर हाइट तो नहीं है। हाँ, तो फिर mg sin थीटा इंटू एक्स यूज कर ले। जी बस है एम जी एच है ना, तो एम एम की जगह 700, जी की जगह 10, और हाइट की जगह एम जी साइन थीटा एक्स, साइन फिर 10x। यानी कि mg sin 10 इंटू एक्स कितना है 120, और रेजिस्टेंसेस कोई नहीं है, प्लस 0। यहां से एक्स का 7000 फाइनल आंसर साइन, बताएं एक्स का। तो सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। देख लें, क्वेश्चन में लिखा होगा। नहीं। ठीक है सर, तो ऐसे एक्स हो जाएगा। जी ठीक है, एक्स क्या है? ये हो जाएगा, ये तो लिखेंगे 280,000 प्लस 7,000 साइन 10, तो 281215.54 281215 पॉइंट फाइव काफी है, फोर काफी है जूल्स। ये आ गया जी। अब ये नेक्स्ट है जी, इज ड्रॉपिंग, ड्रॉप कर रहा है 5 के एंगल से। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स क्या है? 0 है। सॉरी, वो हमने निकालना है। कोई एनर्जी कम हो रही है इसमें जब ये पार्टिकल नीचे जा रहा है? एम जी एच कम हो रही है, 1/2 बिल्कुल एम जी सही, स्क्वायर इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही है। mg लॉस इन एनर्जी हो रहा है, और वो क्या होगा? mg sin थीटा इंटू एक्स। mg sin 5 इंटू एक्स कितना है? 120। ये लॉस इन एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू फिर ये गेन इन एनर्जी। पिछला वाला लॉस इन एनर्जी एम जी एच का होगा ना। जी, सी पार्ट में होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0। यहां से आपके पास एक्स आ जाएगा, और वो फिर जो है एक कंफ्यूजन है, लॉस इन आपका एम जी फाइनल एच है आंसर ना। होगा। जी, व्हाट्स द फाइनल आंसर? 206789118। 89 joules. This one is the work done by the driving force in the last case. This one is all about the potential energy and the kinetic energy, and the law of conversion of energies, that is work done by the driving force plus loss in energy. This one is the basic formula of this exercise. Work done by the driving force plus loss in energy is equal to gain in energy plus work done against resistance. ये आपने याद रखना है, और जहां ओके, पर एनर्जी चेंजेस ज्यादा हो रही हो वहां पर आपने इसको ठीक है।